Hello students. Today in this video we are going to learn class 11 का English का lesson number 1.5 Mrs. Adis. It is written by Sheila Kai Smith. In this video I have covered lesson explanation, icebreakers and brainstorming. A very nice story about a lady, Mrs. Adis, like how she forgives her son's friend even after committing such a big mistake. She forgave him. So it's a very beautiful story. I hope you will really love this story. Okay, before we start the lesson, let me tell you कि if you are looking for more videos on 11th 12th English or English grammar or writing skill, so you can visit to my YouTube channel Learn with BS. You can subscribe to my channel for upcoming notifications. If you like my videos, you can press the like button, you can share it with your friends, you can comment how did you like this video. Okay, so let's start with the lesson. Mrs. Adis. It is written by Sheila Kai Smith. She was an English novelist and poet. Many of her novels were set in the borderlands of Sussex and Kent in English regional tradition. Her book The End of the House of Allard became a bestseller. The story is about a peasant woman who finds a desperate young man at her doorstep, pleading of her to give him protection from the police. He had been poaching on the nearby states and in panic had killed one of the gamekeepers. अभी क्या था दिस स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अ नॉवलिस्ट एंड अ पोएट. तो ये जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट एक पेजेंट गर्ल, फार्मर जो गरीब लेडी है उसके बारे में. उसके घर पे एक आदमी आता है जो कि पोचिंग के लिए, हंटिंग के लिए निकला था और फिर पुलिस उसके पीछे पड़ गई क्योंकि उसने एक आदमी को मार दिया था, गेम कीपर को एक को मार दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी. और वो आके उसको लेडी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बचाओ. तो हाउ शी प्रोटेक्ट्स, वाई शी प्रोटेक्ट्स, ओके, दैट इज़ देयर इन द स्टोरी. मिसेस आदिस. इन नॉर्थ ईस्ट Sussex is a country in the south of England. A great tongue of land runs into Kent. Now what do you mean by tongue of land? A long stretch of land branching out from the मेन रोड. मेन रोड से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो कैंट की तरफ जा रही थी, नॉर्थ ईस्ट ससेक्स में. इट इज़ अ लैंड ऑफ वुड्स, द ओल्ड हैमर वुड्स ऑफ ससेक्स आयरन इंडस्ट्री एंड अमंग द वुड्स ग्लीम द हैमर पॉन्ड्स. नाउ ये जो ससेक्स के बारे में बताया ना, इट इज़ अ लैंड ऑफ वुड्स यानी फॉरेस्ट है कि ओल्ड हैमर वुड्स. अभी हैमर वुड्स क्यों बोलते हैं, वुड यानी फॉरेस्ट. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैमर बिकॉज इन द पास्ट आयरन used to be made using timber and water. Hammer ponds यानी ponds को वो hammer ponds बोले. Owing to the thickness of the woods, the road that passes Mr. Adi's cottage is dark long before the fields beyond. That night there was no twilight and no moon, only a few pricks of fire in the black sky above the trees. Pricks of fire यानी थोड़े से stars थे. But what the darkness hid the silence revealed. In the absolute stillness of the night, windless and clear, every sound was distinct, intensified. The distant bark of dog at Delmonden sounded close at land. अभी Delmonden क्या है, name of a village. And the man who walked on the road could hear the echo of his own footsteps following him like a knell. knell यानी मौत की घंटी. अभी ससेक्स जो नॉर्थ ईस्ट में जो एक कंट्री है इंग्लैंड की, वहाँ के लिए बताया कि ये जो आदिस का घर था उधर आजू बाजू में पूरे फॉरेस्ट थे, थिकेट थे और कोई एकदम सुनसान था. और वो रात, जिस रात की ये बात बता रहे हैं, वो रात पे तो एकदम ट्वाइलाइट यानी सनसेट के बाद जो लाइट होती है वो भी नहीं थी, मून लाइट भी नहीं थी, सिर्फ कुछ स्टार्स ही थे जो ये शाइन कर रहे थे स्काई में. और इतना डार्कनेस, इतना साइलेंस था
कि कोई अगर उस पर कदम भी रखेगा तो उसको आवाज़ आ जाती थी। दूर से एक जो विलेज था डेलमंडन, वहाँ पे कोई अगर डॉग भी बार्क करता था तो लगता था कि ऐसे बाजू में से कोई डॉग बार्क कर रहा है। कोई अगर आदमी रोड पे वॉक भी कर रहा है तो उसकी आवाज़ जैसे इको के जैसे उसकी आवाज़ भी पैरों की चलने की आहट तक आती थी और लगता कि वो उसके लिए मौत की घंटी बन सकती है, बिकॉज़ उसकी आवाज़ को सुन के कोई भी उसके पीछे पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब इट वॉज क्वाइट साइलेंट ऑल ओवर अराउंड एंड इट वॉज क्वाइट डार्क. Every now and then he made an effort to go more quietly, but the roadside was a mass of thorns and their crackling and rustling were nearly as loud as the thud of his feet on the road. Besides, they made him go slowly and he had no time for that. अब ये आदमी के लिए बता रहे हैं कि जो मार के और भागा था, कि आदमी जो था कोशिश कर रहा था चलने की धीरे, बट रोड पे इतने थॉर्न्स थे, इतने पत्ते थे कि उनकी आवाज़ से वो बच ही नहीं पा रहा था और वो धीरे भी नहीं चल सकता था बिकॉज ही वांटेड टू रन अवे. उनके पीछे पुलिस पड़ी थी तो ये भाग भी स्लो भी नहीं चल सकता था. ही वॉज फोर्स्ड टू रन. When he came to Mrs. Adi's cottage, he paused a moment. Only a small patch of grass lay between it and the road, and he looked in at the lighted, uncurtained window. He could see Mrs. Adi stooping over the fire, taking some pot or kettle off it. Stooping over यानी bending over. He hesitated and seemed to wonder. He was a big, heavy working man, not successful judging by the poverty of his appearance. For a moment he made as if he would open the window, then he changed his mind and went to the door instead. अब ये जो आदमी था मिसेस आदीज़ के कॉटेज में, झोपड़ी में, घर में आया और वहाँ पे बाहर भी पैच ऑफ ग्रास था जिसकी मतलब आवाज़ आ रही थी. अभी उसने विंडो से देखा, विंडो को कर्टन नहीं लगा हुआ था, तो विंडो से जब भी उसने देखा तो मिसेस आदीज़ खाना बना रही थी और बेंड किया हुआ बिकॉज ऑफ एज. उसकी जो बैक थी स्टूपिंग यानी बेंड हुई थी. केटल रखी हुई थी, पॉट रखा हुआ था गैस पे, वो सब दिख रही थी. पहले तो उसको लगा कि मैं इसमें, और ये काफ़ी था आदमी हट्टा कट्टा था ये अपीयरेंस में, बट अभी उसको लग रहा था कि मैं विंडो से अंदर जाऊं. फिर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और मेन डोर पे आ गया. ही डिड नॉट नॉक बट वॉकड स्ट्रेट इन. द वुमन एट द फायर टर्न क्विकली राउंड. What you, Peter Crouch? She said. I didn't hear you knock. I didn't knock, ma'am. I didn't want anyone to hear. How's that? I am in trouble. His hands were shaking a little. What have you done? I shot a man, Mrs. Adis. You? Yes, I shot him. You killed him? I don't know. अभी वो दरवाज़ा खटकाया नहीं, सीधा अंदर चला गया. तो मिसेस आदीज़ ने बोला, अरे पीटर क्राउच, यानी वो मिसेस आदीज़ जो है इसको पहचानती थी, इसके लिए उसको नाम से बुलाया. मिसेस पीटर क्राउच, तुम तो अंदर कैसे आ गए? दरवाज़ा तो नॉक नहीं किया. इसने बोला, नहीं, मैं ख़तरे में हूँ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैंने किसी आदमी को शूट किया है. तो वो पूछती है, तुमने इसको मारा? बोलता है, मुझे पता तो नहीं वो मर गया कि नहीं मर गया, बट मैंने उसको शूट ज़रूर किया है. अभी पुलिस मेरे पीछे है. For a moment there was a silence in the small stuffy kitchen. Then the kettle boiled over and Mrs. Adis mechanically put it at the side of the fire. She was a small, thin woman with a brown, hard face on which the skin had dried and innumerable small hair like wrinkles. She was probably not more than 42. But life treats some women hard in the agricultural districts of Sussex, and Mrs. Adis' life had been harder than most. अभी ये जो था आदमी हट्टा कट्टा था. अभी ये लेडी कैसे थी? एकदम पतली सी, छोटी सी, विथ ब्राउन हार्ड फेस, यानी कलर भी उसका डार्क था और उसके फेस पे बहुत ही रिंकल्स थे कि वो 42 से ज़्यादा नहीं थी, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो एज से ज़्यादा ही ओल्ड दिख रही थी. व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, पीटर क्राउच? शी सेड अ लिटिल सॉरली. लेट मी स्टे हियर अ बिट. इज़ देयर nowhere you can put me till they are gone? Who's they? The keepers. अभी वो पूछती है मिसेस आदीज़, मैं तुमको यहाँ पे क्यों रखी हूँ, कहाँ चाहते हो? किसी को अगर तुम मार के आ गए हो तो अभी मैं क्या करूँ? बोलता है, तुम मुझे थोड़ी देर छुपने की जगह दे दो. कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? बोलती है, कीपर्स. Oh, you have had a quarrel with the keepers, have you? Yes. I was down by Cinderwood seeing if I could pick up anything and keepers found me. There were 4 to 1, so I used my gun. अभी वो बता रहा है, येस. उसने पूछा, तुम्हारा कीपर्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया क्या? वो बोलता है, मैं सिंडरवुड में, यानी कोई जंगल का नाम है सिंडरवुड, वहाँ पे था, ऐसे कुछ ढूंढ रहा था हंटिंग के लिए, वहाँ पे गया था और ये जो थे 4 जन थे, मैं अकेला था, तो इसके लिए मुझे
गन यूज़ करनी पड़ी अपने आप को बचाने के लिए। देन आई रैन फॉर इट, दे आर आफ्टर मी, दे कैनॉट बी फार ऑफ नाउ। मिसेज आर्डीज डिड नॉट स्पीक फॉर अ मोमेंट, क्राउच लुक्ड एट हर बीसीचिंगली यानी अपीलिंगली, रिक्वेस्ट करते हुए, मिन्नतें करते हुए। अभी वो बताता है कि अभी वो लोग मेरे पीछे हैं, कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मिसेस आदीज़ ने कुछ नहीं बोला और उसके ऊपर क्राउच उसको अपीलिंग वे में देख रहा है। यू माई डू इट फॉर टॉम्स सेक, ही सेड, यू हैवेंट बीन एन ओवर गुड फ्रेंड टू टॉम, स्नैप मिसेस आदीज़। अभी क्या था, ये मिसेस आदीज़ के बेटे टॉम का फ्रेंड था, तो बोलता है कि टॉम के लिए मुझे रख दो, मैं आपके बेटे का फ्रेंड हूँ, उसकी वजह से मुझे अपने घर में शेल्टर दे दो, पनाह दे दो। तो बोलती है तुम तो उसके अच्छे फ्रेंड नहीं हो। बट टॉम हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी, ही वुड वॉन्ट यू टू स्टैंड बाय मी टुनाइट। बट टॉम मेरे से अच्छी फ्रेंडशिप रखता है, वो आपको चाहेगा कि आप मुझे अपने घर में छुपने दो। वेल आई वोंट से ही वुडेंट, for Tom always thought better of you than you deserved. Maybe you can stay till he comes home tonight, then we can hear what he says about you. वो बोलती है टॉम तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता है, तुम इतना डिज़र्व नहीं करते, उतने लायक नहीं हो, फिर भी तुमको वो ज़्यादा ही सोचता है। ठीक है, उसको आज रात को आने दो, देखती हूँ वो क्या बोलता है, तुम तब तक बैठ जाओ यहाँ पे। He will be up at work for an hour yet and the coast will be clear by then. I can get away out of the country. कि बोलता है कि वो तो अभी तक काम पे ही होगा, 1 घंटे के बाद ही आएगा, और मैं एंड द कोस्ट विल बी, तब तक कोस्ट क्लियर हो जाएगा और मैं चला भी जाऊंगा। वेयर विल यू गो? आई डोंट नो, देयर इज़ टाइम टू थिंक ऑफ दैट। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ। वेल यू थिंक ऑफ इट in here, she said dryly, opening a door which led from the kitchen into the small shed at the back of the cottage. They will never guess you are here, especially if I tell them I haven't seen you tonight. तो मिसेस आदीज़ ने किचन के पीछे दरवाज़ा था, जहाँ पे एक छोटा सा रूम था, शेड था, वहाँ पे उसको बोला कि तुम यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे किसी को डाउट भी नहीं आएगा, अगर पुलिस आएगी पूछेगी भी तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे पीछे छुपे हुए हो। यू आर अ गुड वुमन मिसेस आदीज़, आई नो आई एम नॉट वर्थ योर स्टैंडिंग बाय मी, बट मे बी आई वुड हैव बीन डिफरेंट इफ़ आई हैड अ मदर लाइक टॉम्स। अब ये लड़का बताता है तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी अच्छा लड़का बन सकता था अगर मेरी मम्मी होती, शायद मैं कुछ अच्छा बनता, बट मैं बैड बिहेव्ड बॉय क्यों बनाऊँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। शी डिड नॉट स्पीक बट शट द डोर एंड ही वॉज इन डार्कनेस save for a small ray of light that came through one of the cracks. यानी वहाँ पे जो किचन के पीछे जो दरवाज़ा, उसके खाली क्रैक्स में से थोड़ी लाइट आ रही थी, बाकी पूरा अंधेरा था। By this light he could see her moving to and fro, preparing Tom's supper. In another hour Tom would be home from Iron Latch farm where he worked every day. Peter Crouch trusted Tom to help him, for they had been friends when they went together to the national school at Lamberhurst, and since then the friendship had been broken by their very different characters and careers. अभी वो सोचता है पीटर क्राउच कि टॉम आएगा तो ज़रूर 1 घंटे में आ जाएगा, और ये जो है मिसेस आदि उसके लिए खाना बना रही है, और हम तो स्कूल के फ्रेंड थे, साथ में स्कूल में पढ़ते थे, फ्रेंडशिप थी, पर बाद में फ्रेंडशिप टूट गई बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड उसका कैरेक्टर अलग, मेरा कैरेक्टर अलग, उसका करियर अलग, इसका करियर अलग, तो इसके लिए हमारी फ्रेंडशिप टूट गई। पीटर क्राउच हडल डाउन यानी श्रैंक वाले, अपने आप को सिकुड़ के बैठ गया अपॉन द सैक्स दैट फिल्ड वन कॉर्नर ऑफ द शेड। अ डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकिंग बिगैन टू कम थ्रू फ्रॉम द किचन एंड ही hoped Mrs. Adis would not deny him a share of the supper when Tom came home, for he was very hungry and he had a long way to go. अभी मिसेस आदीज़ जो खाना बना रही थी, इसको खुशबू आ रही थी, इसको लग रहा था काश मुझे उसमें से थोड़ा खाना दे दे जो वो अपने बेटे टॉम के लिए बना रही है। He had fallen into a kind of helpless doze when he was roused by the sound of footsteps on the road. For a moment his poor heart nearly choked him with its beating. They were keepers. They had guessed where he was. Mrs. Adis, his old friend's mother. He had been a fool to come to the cottage. Nearly losing his self-control, he shrank into the corner, shivering, half sobbing. But the footstep went by. The next minute, Mrs. Adis stuck her head into the shed. अभी उसको आहट सुनाई दी पैरों की, उसको समझ में आ गया कि कीपर्स यहीं पे आ रहे हैं।
मिसेस आदि इसके कॉटेज की तरफ ही आ रहे हैं। वो समझ गए कि मैं उसके बेटे का फ्रेंड हूँ, मैंने भी गलत जगह ढूंढी जहाँ पे मैं छुप गया। अभी वो कांपने लगा, सिसकियाँ भरने लगा। वो उसकी जैसे ही फुटस्टेप्स मिसेस आदिस के घर की तरफ बढ़ रही थी। दैट वॉज द कीपर्स, शी सेड शॉर्टली, आई सॉ देम गो बाय, दे हैड लैंटर्न्स, मे बी इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्लिप्ड आउट नाउ एंड वेंट टुवर्ड्स Kensiron. Kensiron is name of a town where there is a railway station. You would miss them that way and get toward to Kent. There is a London train that comes from Tunbridge Wells at 10 tonight. अभी मिसेस आदिस बोलती है कि कीपर्स आए थे, लैंटर्न थे उसके हाथ में क्योंकि बहुत अंधेरा है, तो यहाँ से चले गए और मुझे कहना है कि तुम भी जल्दी से भाग जाओ। वो ये रास्ते गए, तुम दूसरे रास्ते से जाओ। किधर? कैंसीरॉन सिटी की तरफ, और जहाँ पे आप तुमको स्टेशन मिलेगी और लंदन के लिए तुमको ट्रेन मिलेगी आज रात की, तो तुम वहाँ से भाग सकते हो। दैट वुड बी अ फाइन थिंग फॉर मी मैम, बट आई हैवंट द प्राइस ऑफ टिकट ऑन मी। अभी क्या बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है मैं जाऊँ तो सही, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है टिकट के लिए। शी वेंट टू वन ऑफ द किचन ड्रॉस, हियर इज़ 7 shillings, इट विल बी योर फेयर टू लंडन एंड अ बिट ओवर। उसने अपने किचन ड्रॉर में से पैसे निकाल के दिए, कितने? 7 shillings कॉइन्स निकाल के दिए और बोले कि इतना इनफ हो जाएगा, थोड़ा बच ही जाएगा। फॉर अ मोमेंट ही डिड नॉट स्पीक, देन ही सेड, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू मैम। ओ यू नीडंट थैंक मी, आई एम डूइंग इट फॉर टॉम। वो बोलता है थैंक यू, तो उसने बोला मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, तुम क्योंकि मेरे बेटे के फ्रेंड हो। आई होप यू वोंट गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस, there isn't much fear, no one is ever likely to know you have been in the cottage, that's why I had sooner you went before Tom came back, for maybe he would bring a friend with him and that would make the trouble। अभी वो उसको बोलती है तुमको डरने की ज़रूरत नहीं, तुम अभी चले जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम मेरे कॉटेज में थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में टॉम आएगा तो शायद अपने फ्रेंड को लेके आए, फ्रेंड को लेके आएगा तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पे थे, बेटर तुम चले जाओ। She opened the door for him, but on the threshold they both stood still, for again footstep could be heard approaching, this time from the far south। अभी जैसे ही वो घर के दहलीज तक पहुंचा तो वापस दोनों रुक गए। क्यों? क्योंकि पैरों की आवाज़ आ रही थी, तो समझ में आ गया कि वापस वो कीपर्स आदिस के घर की तरफ आ रहे थे। मे बी इट्स टॉम, सेड मिसेस आदिस, देयर इज़ मोर देन वन मैन देयर, आई कैन हियर वॉइसेस। आदिस को लगा शायद टॉम उसका बेटा आ रहा है, बट इसने बोला नहीं, ज़्यादा पैरों की आवाज़ है तो मुझे तो लगता है ज़्यादा लोग हैं। यू वुड बेटर गो बैक, शी सेड शॉर्टली, वेट टिल दे हैव पास्ड अवे। अच्छा तुम वापस अंदर चले जाओ, रुको जब तक ये लोग चले जाएं। विथ एन अनविलिंग श्रग ही वेंट बैक इन टू द लिटिल डस्टी शेड विच ही हैड कम टू हिट एंड शी लॉक द डोर अपॉन हिम। अभी न चाहते हुए भी कि अनविलिंग श्रग, श्रग यानी कि अभी हम शोल्डर्स को ऊपर करते हैं, अनविलिंगली ऊपर करते हैं, न चाहते, द एक्शन ऑफ रेजिंग द शोल्डर्स रिलक्टेंटली। तो अनविलिंगली वो वापस वही शेड में जाता है, किचन के पीछे जो था, और मिसेस आदिस ने उसको लॉक लगा दिया। द फुटस्टेप ड्रू नियरर, दे केम स्लोली एंड हैवीली दिस टाइम, फॉर अ मोमेंट ही थॉट दे वुड पास ऑल्सो, बट देयर मोमेंटरी dulling was only the crossing of the strip of grass outside the door. The next minute there was a knock, it was not Tom then। अभी वो फुटस्टेप और आगे आगे आ रही थी, उनकी आवाज़, उनको लगा कि थोड़ी देर में ये चली जाएंगी, तो बट क्या हुआ कि वो पैरों की आहट उनके ही तरफ बढ़ती जा रही थी। आखिर दरवाज़ा भी नॉक हुआ, बट वो टॉम नहीं था। ट्रेम्बलिंग विथ एंग्जाइटी एंड क्यूरियोसिटी, पीटर क्राउच पुट हिज आइज to one of the numerous cracks in the doors and looked through into the kitchen. He saw Mrs. Adis go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind him। okay. अभी इसको भी, पीटर क्राउच को भी एंग्जाइटी हो गई। क्या हुआ? डर रहा था कि कौन है अगर टॉम नहीं है तो वो जो दरवाजे में होल था वहाँ से वो देखने लगा क्रैक में से कि क्या है। तो उसने देखा कि मिसेस आदिस जो है डोर ओपन किया और एक आदमी जो है जल्दी से अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्राउच रिकॉग्नाइज विडलर, वन ऑफ द कीपर्स ऑफ द कॉटनी कैसल, एंड ही फेल्ड हिज हैंड्स एंड फीट ग्रो लीडन कोल्ड। अभी उसने देखा रहे तो कीपर्स में से जो 4 कीपर्स है उसमें से एक आदमी है अभी तो एकदम ठंडा पड़ गया लीड के जैसे, डर के मारे। दे न्यू वेयर ही वॉज देन, दे हैड फॉलोड हिम, they had guessed that he had taken refuge with Mrs. Adis। It was all up, he was not really hidden,
There was no place for him to hide. Directly they opened the inner door, they would see him. Why couldn't he think of things better? Why wasn't he cleverer at looking after himself like others men? His legs suddenly refused to support him and he sat down on the pile of the sacks. अभी जैसे उसने कीपर को देखा क्रैक में से, वो डर गया. उसको लगा कीपर को पता चल गया कि मैं आदिस के यहाँ पे ही हूँ और उसके बेटे का फ्रेंड हूँ, तो यहीं पे रेफ्यूज लूँगा, शेल्टर लूँगा, सहारा लूँगा. अभी तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे. वो शायद उन्होंने मुझे देखा भी इधर आते हुए. मैं पागल हूँ, मुझे और कुछ क्यों नहीं जगह सूझी. मैं यहीं पे दूसरे लोगों के जैसे क्यों नहीं सोच सकता हूँ. मैं क्यों यहाँ पे आ गया. और उसकी टांगें कांपने लगी और जो सैक्स गोनियाँ पड़ी थी उसके ऊपर वो बैठ गया डर के मारे कांपते हुए. The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. Addis. He stood before her silently, twisting his cap. अभी जो आदमी अंदर आया था उसको कुछ मिसेस आदिस को कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, खाली अपनी टोपी को हिला रहा था, मोड़ रहा था. Well, what is it? She asked. I want to speak to you, ma'am. आदिस ने पूछा, क्या है बताओ. बोलता है, मुझे आपसे बात करनी है. Peter Crouch listened, straining his ears, for his thudding heart nearly drowned the voices in the next room. Oh no, he was sure she would not give him away, if only for Tom's sake. She was a good sort, Mrs. Addis. अभी पीटर क्राउच को अपना डर लग रहा है कि मिसेस आदिस मुझे हैंड ओवर तो नहीं कर देंगी. नहीं, वो अपने बेटे की वजह से मुझे हैंड ओवर नहीं कर देंगी. अदरवाइज़ शायद हैंड ओवर करती भी थी, बट क्योंकि मैं उनके बेटे का फ्रेंड हूँ तो शायद मुझे हैंड ओवर नहीं करेंगी. ऐसे उसके माइंड में कुछ कुछ थॉट्स आ रहे थे और हार्ट बीट बढ़ गई. Well, she said sharply as the man remained tongue-tied. I have thought you had bad news, ma'am. Tongue-tied यानी स्पीचलेस, वो बात ही नहीं कर पा रहा था आदमी. बोलता है कि मैडम मुझे आपके लिए कोई बैड न्यूज़ है. और एक्सप्रेशन चेंज्ड. What? It isn't Tom, is it? He's outside, said the keeper. What do you mean? Said Mrs. Addis, and she moved the door. Don't, ma'am, not till I have told you. Told me what? Oh, be quick, man, for mercy's sake. And she tried to push past him to the door. अभी वो आदमी हेजिटेट कर रहा था. तो ये बोल रही, क्या क्या न्यूज़ है, टॉम के बारे में तो नहीं है. तो बोलता है वो बाहर है. तो ये उसको हटा के और बाहर गई देखने के लिए. तो ये बोलता है रुको, मुझे पहले ख़त्म करने दो जो मुझे बोलना है. पर उसने सुना ही नहीं, दरवाज़ा खोल के और बाहर गई. देयर हैज़ बीन अ रॉ, ही सेड. रॉ यानी छोटा सा झगड़ा हुआ. ही सेड, डाउन बाय द सिंडरवुड देयर वॉज अ चैप there snaring rabbits, and Tom was walking with the Burmans and me and old Crouch. We heard a noise and there it was too dark to see who it was, and directly he saw us the mode off, but we had scared him and he let fly him with his gun. कि अभी वो बताता है कि हम वुड में थे तो तभी वहाँ पे एक आदमी जो है रैबिट्स के पीछे आया और टॉम, बर्मन, मैं, सभी क्रोच ये सब जा रहे थे. तो हमने आवाज़ सुनी. तो अभी उसने जो क्या किया, हमने उसको डराने की कोशिश की, बट उसने क्या किया, गन छोड़ के और फिर भाग गया. टॉम, सेड मिसेस आदिस. द कीपर हैड फॉरगॉटन हिज गार्ड एंड बिफोर ही कुड प्रिवेंट हर शी हैड फ्लंग ओपन द डोर. अभी कीपर ने गार्ड को दरवाजे पे बुला दिया, भूल गया था. और ये आदिस जो है बिना किसी को रोके जोर से दरवाज़ा फ्लंग के ना पटका और बाहर ओपन किया. और उसको डाउट आया कि टॉम को. द मैन आउटसाइड हैड एविडेंटली बीन वेटिंग फॉर द सिग्नल एंड दे केम इन कैरिंग समथिंग विच दे पुट डाउन इन द मिडल ऑफ द किचन फ्लोर. अभी उनको दरवाज़ा खुला तो बाहर लोगों को सिग्नल मिल गया कि हमको टॉम की डेड बॉडी अंदर लेके आनी है, और वो अंदर लेके आए, किचन के फ्लोर पे रख दी. इज़ ही डेड? आस्क्ड मिसेस आदिस विदाउट टीयर्स. द मेन नॉडेड. दे कुड नॉट फाइंड अ ड्राई वॉइस लाइक हर्स. अभी वो पूछती है ये डेड बॉडी टॉम की है. अभी इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हम इसको क्या बोलें, ओल्ड लेडी को क्या उसका रिएक्शन होगा. इन द शेड पीटर क्राउच हैड सीज्ड टू स्वेट and tremble. Strength had come with despair, for he knew he must despair now. Besides, he no longer wanted to escape from this thing that he had done. Oh Tom, and I was thinking it was one of the keepers. Oh Tom. अभी पीटर क्राउच जो अंदर शेड में छुप के बैठा था, अभी उसको ताकत आ गई, पसीना बंद हो गया, कांपना बंद हो गया. अभी उसने सोचा कि मुझे भागना नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि जो मैंने गोली चलाई, जो आदमी पे चलाई और कोई नहीं था, टॉम था.
और दूसरी बार उसने क्या समझा था, किसी कीपर के ऊपर चलाई, बट वो टॉम के ऊपर थी और टॉम मर भी गया। तो अभी इसको लगता है कि अभी मैं कैसे भाग जाऊँ। अभी उसको भागना नहीं था, उसको लग रहा था कि अभी मुझे मिसेस आदीस की पुलिस को हैंड ओवर कर दें। एंड इट वॉज़ यू दैट गॉट इट फ्रॉम मी, आई डोंट वॉन्ट टू लिव। कि अभी वो सोच रहा है कि मुझे बस जीना ही नहीं है। एंड ये लाइफ वॉज स्वीट फॉर देयर वॉज अ वुमन एट Ticehurst, a woman as faithful to him as Tom, who would go with him to the world's end even now. But he must not think of her. He had no right. He must pay with his life for what he had done. अभी उसको लग रहा है कि ये लेडी तो कितनी अच्छी है, अपने बेटे के जैसे अच्छी है, बट मैं अभी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि इतनी और अच्छी बने, मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किया है, तो मेरी भी जान जानी चाहिए जैसे मैंने इसके बेटे की जान ली है। मिसेस आदीज वॉज सिटिंग इन द ओल्ड बास्केट आर्म चेयर बाय द फायर, वन ऑफ द मेन हैड हेल्प्ड हर इन टू इट। वी विल गो राउंड टू आयरन लैच कॉटेज एंड आस्क मिसेस गेन टू कम डाउन टू यू। This is a terrible thing to have come to you, and as for the man who did it, we have a middling good guess who he is and he shall hang. अभी मिसेस आदीज जो है पुरानी चेयर में बैठ गई। एक आदमी ने उसको मदद किया बिकॉज एकदम शॉक्ड हो गई थी, तो हेल्प किया उसको बैठने में। अभी वो बोलते हैं कि हम बाजू वाले घर में से किसी मिसेस गेन को बुलाते हैं, क्योंकि आप अकेली हो, आपके बेटे की डेथ हो गई है, तो टेरिबल टाइम है आपके लिए, हम समझ सकते हैं, तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी, पर आप जो आदमी है उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी फांसी देंगे। We didn't see his face, but we have got his gun. He threw it into a bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who has been up to no good since the day he was sacked for stealing corn. अभी वो बताते हैं कि वो आदमी को हमने देखा तो नहीं, बट उसकी गन जो चलाई तो बंदूक वहाँ पे फेंक दी थी, तो हमारे पास उसकी बंदूक है, और वो बंदूक किसकी है, पीटर क्राउच की है। तो यानी वो पीटर क्राउच ही है, और वो बुरे कामों में गया है। जब से उसको पहली बार कॉर्न चोरी करते हुए पकड़ा गया था, डिसमिस किया गया था, तब से वो बुरे कामों में ही है। तो वी आर श्योर कि वो पीटर क्राउच ही है, क्योंकि गन जो है उसकी ही है, गन छोड़ के भाग गया है। बट ही कुडेंट हैव नोन इट वॉज टॉम व्हेन ही डिड इट, ही एंड टॉम ऑलवेज बीइंग बेटर फ्रेंड्स ही डिजर्व। वो बताते हैं उसको, कीपर्स बताते हैं आदिस को, कि हम लोग को श्योर है कि टॉम, उसको ये पीटर क्राउच को पता नहीं होगा कि उसने टॉम के ऊपर गोली चलाई, उसने ऐसे ही चलाई है गोली, और वो टॉम मर गया है, क्योंकि वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे, तो अपने फ्रेंड के ऊपर गोली नहीं चलाएगा, बट जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गोली चलाई और गलती से टॉम के ऊपर लग गई है। Peter Crouch was standing upright now, looking through the crack of the door. He saw Mrs. Adi struggle to her feet and stand by the table, looking down on the dead man's face. He saw her put her hand into her apron pocket where she had thrust the key of the shed. अभी पीटर क्राउच पीछे जो शेड में थे खड़े रह गए, और क्रैक में से, दरवाजे के क्रैक में से देख रहे थे कि जो मिसेस आदिस थी अपने पैरों पे खड़े रहने की स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो एकदम शॉक हो गई थी। अपने एप्रन के जो पॉकेट में उसने चाबी रखी थी, जो शेड के अंदर इसको लॉक करके बंद करके रखा, उसकी चाबी वो निकाल रही थी, वो निकाल नहीं पा रही थी पॉकेट में से। द बुरमन्स हैव गॉन आफ्टर क्राउच, सेड विडलर नर्वसली, ब्रेकिंग द साइलेंस। दे हैड thought he had broken through the wood iron latchway. There is no chance of his having been by here. You haven't seen him tonight, ma'am. अभी वो उसको पूछते हैं कि आपने उसको देखा तो नहीं है ना। There was a pause. No, said Mrs. Adis. I haven't seen him. Not since Tuesday. She took her hand out of the apron's pocket. वो बोलती है नहीं, मैंने तो इसको नहीं देखा है, पीटर क्राउच को। इनफैक्ट ट्यूसडे से ही मैंने इसको नहीं देखा है, और उसने एप्रन में चाबी वापस रख दी। Well, we'll be getting around and fetch Mrs. Gain. Reckon you would be glad to have her. Mrs. Adis nodded. Will you carry him in there first? And he pointed to the bedroom door. अभी इन लोगों ने बोला ठीक है, आप उसको देखोगे तो बताना। अभी जो डेड बॉडी है टॉम की, बेडरूम तक लेके जाएं आपके। The men picked up the stretcher and carried it into the next room. Then silently each wrung the mother by hand and went away. और डेड बॉडी टॉम के अंदर बेडरूम में रख दी, और फिर उसके शोल्डर पे प्रेस करके सांत्वना देते हुए एक एक जन फिर चला गया। शी वेटेड अंटिल दे हैड शट द डोर, देन शी केम टुवर्ड्स द शेड। क्राउच वंस मोर फेल शिवरिंग, ही कुडंट बियर इट। नो, ही वुड रादर बी हैंग्ड
then face Mrs. Adi's. He heard the key turn in the lock and nearly screamed. अभी जब तक वो लोग चले नहीं गए तब तक वो वेट किया, सब लोग चले गए, डोर बंद हुआ, फिर उसने पीटर क्राउच का जो शेड में छुपा हुआ था उसको लॉक खोला और ये जो था अंदर बैठ रहा था, देख रहा था। उसको और भी बुरा लग रहा था कि मैंने इसके बेटे को मारा, फिर भी ये लेडी ने मुझे पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया। सो हाउ नाइस ऑफ हर, हाउ ग्रेट ऑफ हर, मुझे भी फांसी पे लटकाना चाहिए, मैंने बहुत गलत काम किया है और ये लेडी ने मुझे बचाया। बट शी डिड नॉट कम इन, शी merely unlocked the door, then crossed the kitchen with a heavy dragging footstep and shut herself in the room where Tom was. अभी इसने उससे कुछ बात नहीं किया, सिर्फ अनलॉक किया और उसको बोला तुम भाग जाओ, और वो टॉम जिस रूम में था, जिसकी डेड बॉडी टॉम की जिस रूम में थी, उसमें गई और अंदर से दरवाज़ा बंद किया। पीटर क्राउच न्यू what he must do, the only thing she wanted him to do, the only thing he would possibly do, he opened the door and silently went down. अब पीटर क्राउच को समझ में आ गया कि वो मुझे फेस नहीं करेगी, मुझसे बात नहीं करेगी, पर उसने मुझे फॉरगिव कर दिया बिकॉज मैंने अननोइंगली, बिना जाने गोली चलाई और वो मर गया। मैंने इंटेंशनली उसके बेटे को नहीं मारा, ये सोच के उसने मुझे माफ़ कर दिया है और वो मुझे चाहती है कि मैं भाग जाऊं, बट वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। आफ्टर ऑल मैं उसके बेटे का कातिल हूँ, मुझसे फेस नहीं करना चाहती, बट उसको क्या चाहिए कि मैं भाग जाऊं। तो ये चुपचाप वहाँ से दरवाज़ा खोल के चला जाता है। सो वेरी नाइस लेडी, हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ यू कैन से कि उसको इतना फॉरगिवनेस की थी, किसी को माफ़ कर पाना अपने बेटे की मौत के ऊपर बहुत ही बड़ी बात है। तो रियली शी वॉज अ वेरी ग्रेट लेडी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेसन। लेट अस डू दी एक्टिविटीज़। जैसे लेसन के बिगनिंग में है आइस ब्रेकर्स। शेयर योर ओपिनियन ऑन फीलिंग विथ योर पार्टनर अबाउट अ स्ट्रेंजर हु हैज़ अ विलियनस और लुक और अपीयरेंस। तो आपको कैसे लगता है? आई फील फ्राइटेंड, एंक्शस, थ्रेटेंड, स्केर्ड। स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट स्क्रोल. You can read the answers or you can take the screenshot and try solving activities on your own, otherwise video will become very big, but these answers will definitely help you. If you have any queries, any comments, you can write in the comments box. Kuch still if you don't understand, okay, I hope these answers will be enough. I need not explain the answers. Then we have icebreakers के बाद brainstorming, which is after the lesson. Brainstorming activities. Okay. Discuss with your partner and describe the atmosphere in the woods when Peter Crouch was heading towards Mrs. Adi's. कैसा था? पैसेज में से ही लिया है, डार्क मूनलाइट, और क्या क्या था? जैसे शांत था, डॉग की बार्किंग सुनाई दे रही थी. ऑल दो सेंटेंसेस यू हैव टू राइट. कि पीटर क्राउच डिडंट नॉक बिफोर एंटरिंग. क्यों? क्योंकि वो ट्रबल में था, वो उसको टाइम भी नहीं वेस्ट करना था इतना भी. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट और यू कैन पॉज इट एंड सी. Again, Mrs. Adi's didn't hand over Peter Crouch to keep us because क्योंकि उसने उसको forgive कर दिया था, उसने unknowingly उसको मारा था, and he himself was feeling guilty. तो all those things you have to write. Okay, the writer has used a phrase thudding heart, which means pounding or beating of the heart. thudding heart यानी धड़कन बढ़ गई थी. जैसे pounding भी बोलते हैं, beating of heart भी बोलते हैं. Do you know thud is an onomatopoeic. कोई भी word which represents a sound, पोएम्स में हम लोग करते हैं ना फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपिया. तो एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट्स ए साउंड, जैसे थडिंग किसकी आवाज़ होती है? हार्ट की. बीटिंग किसकी आवाज़ होती है? हार्ट की. पाउंडिंग किसकी आवाज़ होती है? हार्ट की. तो वैसे और भी ओनोपैटिक वर्ड्स आपको लेसन में मिलेंगे. जैसे नॉक, दरवाजे को खटकाने की आवाज़ को बोलते हैं नॉक. सॉबिंग, जब भी कोई रोता है तो रोने की आवाज़ को बोलते हैं सॉबिंग. रसलिंग, कोई अगर पत्ते, झाड़ की डंडियाँ, उनकी आवाज़ आती है तो उसको बोलते हैं रसलिंग. क्रैकलिंग, उनकी आवाज़ को बोलते हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं दे आर ओनोमैटोपिक. She went to one of the kitchen drawers. Look at the sentence carefully. The underlined word tells us that she went
some time ago to a particular place as one of the kitchen drawers. Now discuss with your partner and tell the class what you did yesterday and what your friend did yesterday. यानी past tense में any actions which happened in the past we use second form of the verb. तो जो actions आपने past में की या आपके friend ने कल की वो सब लिखनी है. तो second past tense में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ सी का सॉ, रिसीव का रिसीव्ड, गो का वेंट, कुक का कुकड, राइट का रोड, टेल का टोल्ड, वेक का वोकम. ऐसे जो आपने कुछ एक्शन किए उसके लिए आप पास्ट टेंस यूज़ करोगे यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने फ्रेंड ने कुछ किया वो आप लिखोगे. अनाउंस का अनाउंस्ड, गेट का गॉट, फील का फेल्ट, सेंड का सेंट, कॉल का कॉल्ड, वेट का वेट. से सेकंड फॉर्म यूज़ करना है. तो कोई भी आपको एक्शंस बतानी है आपने कल क्या किया या पास्ट में क्या किया. Basically they want to teach you कि how to use past tense. Okay, then we have last activity. Best punishment is forgiveness. अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो तो वो उसकी सबसे बड़ी सज़ा है. अभी जैसे इसमें भी हमने लेसन में देखा कि कैसे उसको पीटर क्राउच को गिल्टी फील हो रहा था. उसको लग रहा था नहीं कि मुझे अभी फांसी मिलनी चाहिए, मैंने बहुत गलत काम किया है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी को सज़ा नहीं देते हैं बट उसको फॉरगिव करते हैं तो उसको उसका माइंड उसका कॉन्साइंस ही उसको सज़ा दे देता है. वो सबसे बड़ी सज़ा है. तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. यू कैन मेक यूज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कि आपको उसके ऊपर बताना है कि कैसे फॉरगिवनेस जो है पनिशमेंट से ज़्यादा है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.